ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وحید منزل میں آج چاروں طرف خوشیاں چھائی تھیں۔ سبھی لوگ ایک دوسرے سے پیار محبت سے پیش آ رہے تھے اور وحید منزل کی گرم جوشی عروج پر تھی، کیونکہ آج یہاں ان کے من پسند مہمان آئے ہوئے تھے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دردانہ پھپھو اور ان کا سارا خاندان یہاں پر دعوت پر موجود تھا، جہاں سب لوگ ایک ساتھ بیٹھے خوشیاں منا رہے تھے۔ وہیں پر میں کچن میں مصروف تھی۔ میرا حلیہ بگڑا ہوا تھا۔ سارے دن کی تھکی ہاری ابھی بھی میں کاموں سے فرصت نہیں نکال پا رہی تھی کہ جا کر ذرا فریش ہو جاؤں۔ ایک کام ختم کرتی تو تائی جان دوسرا کام ذمہ لگا دیتی، وہ کام ختم کرتی تو دادی جان کوئی اور کام ذمہ لگا دیتی، اور اگر کوئی کام نہ ہوتا تو کچن میں برتن دھونے کا انبار لگا ہوتا۔ صبح سے کچن میں کھڑے کھڑے اب تو ٹانگوں اور کمر میں درد محسوس ہونے لگا تھا، لیکن یہ سوچ کر میں پرسکون ہو گئی تھی کہ بس اب کچن میں کھڑے ہونے کا یہ آخری کام ہے۔ بس یہی چائے بنا کر ان لوگوں کو دے دوں گی تو اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لوں گی۔ لیکن شاید یہ آرام اب میری قسمت میں نہیں تھا، آج رات تو بالکل بھی نہیں۔ میں بھی چائے بنا رہی تھی کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تائی امی کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو مجھے ہی پکار رہی تھی۔ ارے حیا، کہاں رہ گئی ہو تم؟ جلدی آؤ، تمہیں دکھ نہیں رہا کہ مہمان بیٹھے ہیں؟ ایک تو یہ لڑکی بنا حد کرتی ہے، ہر کام میں دیر کر دیتی ہے، جلدی سے چائے لاؤ۔ تائی جان نے مجھے جھڑک کر کہا تو میں نے وہیں سے آواز دی، جی تائی جان ابھی لائی، بس تھوڑی دیر اور۔ پتہ نہیں یہ تھوڑی دیر کتنی دیر ہوتی رہے گی؟ صبح سے یہی بات کہے جا رہی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی، اگلے 5 منٹ میں تم یہاں موجود ہونی چاہیے، چائے کے ساتھ۔ چچی جان نے غصے سے کہا تو میں خاموشی سے اپنا کام کرنے لگی۔ چائے کے نیچے آنچ تیز کر دی تو چائے جلدی سے ابلنے لگی۔ میں نے چائے کو ایک کیتلی میں ڈالا اور دیگر لوازمات ٹرالی میں سجائے باہر کی طرف بڑھی اور آہستہ آہستہ ٹرالی گھسیٹتے ہوئے ڈرائنگ روم تک پہنچی۔ سبھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اتنے بڑے گھر میں آج مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا معلوم ہو رہا تھا۔ کہنے کو تو میں بھی اس خاندان کا حصہ تھی، لیکن کیا کبھی کسی نے مجھے اس خاندان کی عزت دی تھی؟ مجھے تو آج تک یاد نہیں رہا تھا۔ کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج میں ان سب لوگوں کے ساتھ ایسے ہی عزت کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ سبھی لوگ مجھ سے بھی ایسے ہی پیار سے بات کر رہے ہوتے جس طرح میری دوسری کزنوں سے کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں سوچا اور پھر خاموشی سے ٹرالی لیے میز تک آئی اور میز پر لوازمات سجانے کے بعد میں نے ایک ایک چائے کا کپ بنا کر سبھی کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے سبھی کو چائے پیش کر دی تھی۔ اب آخر میں یہ میری سب سے بڑی کزن، جو اس خاندان کی سب سے ہونہار اور لاڈلی مانی جاتی تھی، ماہی کی طرف کپ بڑھایا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو کپ اوندھا لڑک گیا، جس کی وجہ سے ساری چائے ماہی کے کپڑوں پر گر گئی۔ غلطی بھی اس کی اپنی تھی، میں تو چائے پہلے سے ہی لیے کھڑی تھی، وہ خود ہی موبائل میں گھسی ہوئی تھی۔ اس میں میرا کیا قصور تھا کہ اس نے غلط ہاتھ سے لیا تھا؟ لیکن اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک دم سے تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ دل میں ایک ہی پکار نکلی، یا اللہ۔ میں اپنے گال پر دونوں ہاتھ رکھ کر وہیں شاکڈ سی کھڑی تھی کہ سارے گھر والوں کی لان تان مجھ پر برسنے لگی۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بچپن سے ہی میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا چلا رہا تھا۔ ماہی غصے میں چور ہو چکی تھی۔ دادی جان بھی غصے سے میری طرف دیکھنے لگیں اور کہنے لگیں، اندھی ہو حیا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ دیکھو اس کے سارے کپڑے خراب کر دیے، جاہل کہیں کی، آج تک تمہیں کوئی ڈھنگ سے کام کرنا نہیں آیا۔ باقی سب بھی مجھے ہی جاہل بولنے لگے تھے۔ میں اگر اتنے لوگوں میں اپنے دفاع کے لیے بولتی بھی تو میری آواز دبا دی جاتی۔ میں خاموش ہو گئی۔ میرے لیے یہی بہت تھا کہ مجھے اس گھر میں رہنے کے لیے چھت ملی ہوئی تھی، لیکن میرا دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے، جبکہ ماہی مجھ پر غصہ ہو رہی تھی۔ دادی جان، اس جاہل کو یوں غصہ کرنے اور گھورنے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تب سیکھے گی جب اسے اسی کے انداز میں سکھایا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گرم گرم چائے کپ میں ڈالی
और मेरी तरफ बढ़ी ही थी कि एकदम से हादी भाई उठे और उसका हाथ पकड़कर साइड पर कर दिया, जबकि मेरे हाथ से खींचकर मुझे अपने पीछे कर लिया। उनकी इस पेशकदमी पर मैं हैरान हुई थी, लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। वो हमेशा ऐसा ही करते थे, मेरे हक में अक्सर बोला करते थे। इस घर में सिवाय हादी भाई के और कोई नहीं था जो मेरी साइड ले सकता या मेरे हक में बोल सकता। मेरी आंखों में आंसू की मजीद रवानी हो गई। हादी भाई मुझे अपने पीछे करते हुए बोले, अरे क्या हो गया माही, सिर्फ चाय ही तो गिरी है, और मैं देख रहा हूं ये सिर्फ इसकी गलती नहीं थी। इसने तो पहले ही चाय तुम्हारी तरफ बढ़ा दी थी। गलती तुम्हारी थी, तुमने ही गलत हाथ से चाय ली और चाय का कप तुम्हारे ऊपर ही गिर गया। इसमें इसकी क्या गलती है? उन्होंने हमेशा की तरह मेरे हक में बोलना चाहा, लेकिन जब उनके सामने खड़ी गुस्से से सुर्ख होती माही 16 बार नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। बाकी सब भी ये सब कुछ देखकर खड़े हो गए थे। माही गुस्से से चूर लहजे में कहने लगी, तुम एक बार फिर से इसके साथ हमदर्दी करने लगे। मुझे लगता है यह सिर्फ हमदर्दी नहीं, कुछ और भी है। तुम इस लड़की के लिए मेरे सामने दीवार बनकर खड़े हो। तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं, तुम्हारी होने वाली मंगेतर हूं। ये लगती क्या है तुम्हारी मनहूस मारी कहीं की। उनकी इस बात पर हादी भाई मजीद बिगड़ चुके थे। उन्होंने हाथ उठाकर गुस्से से कहा, बस माही, इससे आगे मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वो मासूम क्या कहती है तुम लोगों को? हर वक्त इस घर में कोई ना कोई उसके खिलाफ ऐसे ही बोलता रहता है। इसे जुल्म का निशाना बनाए रखते हो। हद होती है किसी का सब्र आजमाने की भी। खबरदार, अगर आज के बाद तुमने कभी कोई ऐसी हरकत की इसके साथ, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हादी बाई गुस्से से बोले तो मुझे हैरान की हुई, लेकिन अगले ही लम्हे जो कुछ मेरे कानों ने सुना, मुझे लगा ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों ना गई, क्योंकि अब माही अपने असली रूप में आने लगी थी। उसकी जबान चलने लगी और वो कहने लगी, हादी, तुम सच सच क्यों कह नहीं देते कि तुम इस लड़की के लिए पागल हुए जा रहे हो? इस लड़की ने तुम्हें अपनी जुल्फों का असीर बना लिया है। जिस तरह मुझे ये इल्ज़ाम बहुत बुरा लगा था, उसी तरह हादी भैया को भी ये इल्ज़ाम सख्त नापसंद आया था। वो गुस्से से माही की तरफ बढ़े, लेकिन फिर कुछ सोच कर रुक गए। घर की फिजा एकदम से तनाव का शिकार हो गई थी। हर एक की चुभती हुई नजरें मुझ पर जमी हुई थी, जबकि मेरे सामने दीवार बने खड़े हादी भैया ने एकदम से पीछे मुड़कर मुझे कहा, हया, जाओ अपने कमरे में जाओ और सुबह तक बाहर मत निकलना, अब आराम करो। सुबह से मैं देख रहा हूं तुम किस कदर जलील हो रही हो। किचन में खड़ी थी, घर की सफाई तुमने की, अभी भी इन लोगों को चैन नहीं कि तुम्हें मजीद जलील करवाएंगे। उनकी बात पर मैं इधर उधर देखने लगी। हर एक की गुस्से भरी निगाहें मुझ पर जमी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। इर्द गिर्द देखने पर हादी भाई ने मुझे झड़क कर कहा, सुन नहीं रही हया, क्या कह रहा हूं? उनकी इस झड़की पर मैं जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी। सीढ़ियां चढ़ती हुई मैं भागते हुए अपने कमरे में आई और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और अपने मुंह पर हाथ रखकर हिचकियों से रोने लगी। हमेशा की तरह आज भी मेरे दिल को बहुत दुख हुआ था। आंसू जो मेरी आंखों के किनारों पर खड़े थे, फूट फूट कर बह निकले। मेरा कमरा वाहिद ऐसी जगह थी जहां मुझे रोने से कोई नहीं रोक सकता था, जहां मुझे कोई ना रोता हुआ देख सकता था और ना ही हंसता हुआ। इस कमरे की दीवारें मेरे दुख सुख की साझी थी। ये मेरे साथ दुख में रोती थी और हर सुख में हंसती थी। काफी देर मैं दरवाजे से टेक लगाए हिचकियों से रोती रही और फिर कुछ ख्याल आने पर उठी, वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। आंखों से नींद कोसों दूर थी। बचपन से लेकर अब तक यही होता चला आया था। जिस रोज ये सब लोग मुझे जलील करते थे, उस रोज मेरी रात की नींद उड़ जाती थी और फिर वो सारी रात मैं मुसल्ले पर बैठकर आंसू बहाते गुजार देती। बस एक अल्लाह ही वसीला था जिसके सहारे मैं इस घर में मौजूद थी। और अब होश संभालने के बाद हादी भैया मेरे हक में बोलने लगे थे। उनका आसरा भी मुझे रहने लगा था। मैं जल्दी से वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, वजू किया, वापस आते हुए जाय नमाज बिछाई और नमाज अदा करने लगी। नमाज में भी मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आंसू फर फर बहते और जाय नमाज में जज्ब होते जा रहे थे।
नमाज अदा करने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए तो कोई दुआ मेरे लबों तक ना आई। यूं लगा था जैसे सारे लफ्ज खत्म हो चुके हैं। बस महसूस हो रहा था कि वो तो रब है, क्या उसे मेरे हालात का नहीं मालूम? वो तो सब देख रहा है। वो तो पत्थर में छुपे हुए कीड़े का हाल भी मालूम कर लेता है। वो तो सब जानता है, वो तो सब देख रहा है। ऐसे में मैं उसे अपनी मुश्किलात क्यों कर बताऊं? वो सब कुछ जानता है। मैंने हाथ उठाए और फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते आमीन करके अपने हाथ अपने मुंह पर फेर लिए। दिल को एक सुकून मिल चुका था। यूं लग रहा था जैसे मेरी सारी दुआओं पर कुन हो गया हो, यूं जैसे रब ने मेरी दुआ कबूल कर ली हो। एकदम से दिल में फैला हुआ सारा दर्द सिमट कर ख़त्म हो चुका था। यूं जैसे मेरे रब ने कुन फरमाकर मेरे दिल के सारे दर्द को सुकून में बदल दिया हो। मैंने मुस्कुराते हुए सब कुछ भूल कर पीछे की तरफ टेक लगा ली और आंखें मूंद ली। तस्बीह मेरे हाथ में थी और मैं जिक्र किए जा रही थी, और ना जाने कब मेरी आंख लग गई। जब मेरी आंख खुली तो फजर की अजान हो रही थी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी तस्बीह को अपनी आंखों से लगाया और फिर अपने होठों से लगाती हुई जाए नमाज का एक कोना तय करती हुई उठ गई। वजू के बाद नमाज अदा करने के बाद कुछ देर के लिए मैंने तिलावत की और फिर बाहर निकल आई। दादी जान उठ चुकी थी। वो भी ड्राइंग रूम में बैठी जिक्र व अस्कार में मसरूफ थी। मुझे देखकर कहने लगीं, उठ गई महारानी, वैसे तुम्हें ज़रा भी शर्म व हया नहीं। हर वक्त तुम हमारे ख़ानदान में बेचैनी का सबब बनती हो। हर वक्त हर मौके पर किसी न किसी तरीके से तुम चाहती हो कि घर में झगड़ा ज़रूर हो और सबका चैन खराब हो। रात जो कुछ तुमने किया वो करके तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ गई ना। खुद तो जाकर आराम से सो गई मनहूस कहीं की। दादी जान की चुपती हुई आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो एक दर्द की लहर मेरे सीने में उठी। मैं भी तो दादी जान का ही खून थी ना, तो फिर दादी जान मुझसे हमेशा यूं खफा रहती थी। मैंने कहा, दादी जान, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। वो तो पता नहीं क्यों सब कुछ अचानक। मेरे अल्फाज वहीं मेरे मुंह में ही रह गए जब ताई जान गुस्से से किचन में आई और मेरे बालों से पकड़कर कहने लगी, खबरदार, खबरदार हया, अगर दोबारा तुमने मेरे बेटे के सामने आने की कोशिश भी की, तुम मेरे बेटे पर डोरें डाल रही हो। और इन सब चीज़ों की मुझे समझ आ रही है। दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं, जवान बेटे की माँ हूं। वो जो आजकल तुम्हारे गुण गाने लगा है ना, मैं सब जानती हूं। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया धरा है। जैसी माँ वैसी बेटी। दफा हो जाओ, अब जाकर नाश्ता बनाओ। खबरदार अगर दोबारा जबान लड़ाने की कोशिश की या फिर हादी के इर्द गिर्द भी नजर आई, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीद मंजिल की सारी औरतें सुबह सवेरे अजानों के साथ ही उठ जाया करती थी। यही वजह थी कि अब दादी जान के साथ ही ताई जान भी नमाज अदा करने के बाद किचन की तरफ आ गई। उन्हें किसी भी तरीके से मुझ पर गुस्सा निकालना था, वरना अगर हादी भाई यहाँ होते तो मेरे साथ कुछ भी ऐसा ना होने देते। वो एक सख्त और बिगड़ी हुई तबीयत के मालिक थे। लाड प्यार ने उन्हें बिगाड़ दिया था, मगर मुझसे हमेशा हमदर्दी करते थे। मेरी आंखों से एक बार फिर से आंसू बहने लगे। मेरा तो इसमें कोई कसूर नहीं था और खुदा जानता था कि मैं हादी भाई को हमेशा भाई समझती थी। भाई के अलावा मैंने उन्हें कभी कुछ ना समझा था, ना ही कभी ऐसी नज़र से देखा था। और मैं ये भी तो जानती थी कि हादी भाई माही से मोहब्बत करते थे और माही से मोहब्बत की मंगनी भी कर ली थी। फिर मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती थी कि हादी भाई उन्हें छोड़कर मेरी तरफ माइल हो जाएं। अगर वो हमदर्दी की बिना पर मुझे कुछ बोल भी देते थे तो इसमें क्या बुराई थी। जिस तरह मेरी बाकी कज़नों के वो कज़न थे, इसी तरह मेरे भी तो कज़न थे। लेकिन मुझे ये भी याद रखना था कि मुझे इस घर में वो अहमियत हासिल नहीं थी। मैं इस घर की नौकरानी के अलावा और कोई अहमियत नहीं रखती थी। मैंने आंसू साफ किए और खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। धीरे धीरे सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठने लगे। मेरी सारी कज़न्स यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो गई। हादी भाई भी ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। मैं जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन जूं जूं मैं नाश्ता टेबल पर लगाती जा रही थी, सभी की नज़रें मुझ पर जमी हुई थी। खानदान में कोई शख्स ऐसा नहीं था,
कोई नजर ऐसी नहीं थी जो मुझ पर ना टिकी हो, पर एक गुस्सीली निगाहें मेरे चेहरे पर टिकी थी और मेरे दिल को घायल किए जा रही थी। अगर मेरी जगह पर उनमें से किसी की बेटी होती तो क्या वो लोग उसके साथ ऐसा ही करते जिस तरह आज मेरे साथ हो रहा था? मैंने अफसोस से सर झटका और खामोशी से सभी को नाश्ता सर्व कर दिया। सब लोग नाश्ता करके उठ गए। अब वाहिद मैं बची थी, लेकिन मेरे नाश्ता करने की नौबत ही ना आई थी। ताईजान ने मुझे बर्तन धोने पर लगा दिया। किसी ने मुझसे ये तक ना पूछा कि तुमने नाश्ता किया या नहीं। मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने कहा, ताईजान बस मैं नाश्ता कर लूं, मुझे बहुत भूख लगी है। ताईजान का रात वाला गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। उन्होंने मेरी तरफ एक गुस्सीली निगाह दौड़ाई और कहने लगी, नाश्ता और तुम्हें करने दूं? सवाल ही पैदा नहीं होता। रात तुमने सबकी चाय खराब की थी ना, आज सारा दिन तुम जलील रहोगी। खबरदार अगर तुमने एक नवाला भी अपने हलक से उतारा। सबसे पहले घर का काम खत्म करो। जब तक घर का सारा काम खत्म नहीं हो जाता तब तक तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, समझी तुम? ताईजान ने उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा तो मेरी आंखें आंसुओं से भरने लगी। मैंने ताईजान को बोला, लेकिन ताईजान इसमें मेरा क्या कसूर था? ताईजान किसी तौर नहीं समझ रही थी। मजबूरन मुझे सब कुछ भुलाकर बर्तन धोने पड़े। मैंने रात से कुछ ना खाया था। मेरा पेट भूखा था और मेरी आंखों के सामने भूख की वजह से अंधेरा आ रहा था, लेकिन मजबूरी थी। मुझे अपनी भूख मिटाने के लिए सबसे पहले ये काम करने थे। जब तक मैं ये काम ना कर पाती तब तक मुझे खाने के लिए वाकई में कुछ ना दिया जाता। हर जगह पर लॉक लगा दिया जाता और मैं वाकई में भूखी रह जाती। घर के काम तो मुझे वैसे भी हर हाल में करने थे। मैं खामोशी से बर्तन धोने लगी। बर्तनों का एक अंबार लगा था, क्योंकि कल पुप्पो की दावत थी और इतने सारे पकवान बनाए गए थे। फिर उसके बाद चाय वगैरह के लवाजमात। रात को बिना बर्तन धो सो गई थी, इसी वजह से अब ये सब बर्तन धोने थे। एक तो भूख की वजह से हाल से बेहाल हुई जा रही थी। चारों नाचार मैंने तमाम बर्तन धो लिए। बर्तन धोने के बाद सारे घर की सफाई, उस घर के एक एक फर्द के कमरे में जाकर उसके कमरे की सफाई करना, फिर लाउंज की सफाई करना, गेस्ट रूम की सफाई करना और फिर सहन में लगे पौधों की देखभाल करना। सारे काम करने के बाद सारे घर की डस्टिंग और थक हार कर आखिरकार किचन में आई तो अब दोपहर का खाना बनाना था। जल्द से जल्द खाना बनाने के लिए रेडी हो गई थी। भूख से अब बुरा हाल हो रहा था, चला भी नहीं जा रहा था, बार बार चक्कर आ रहे थे। दिन के 12 बज चुके थे और अभी तक एक नवाला तक मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा था। मैंने फ्रिज को खोलने की कोशिश की, लेकिन फ्रिज पर ताला लगा था। बचा कुचा तमाम खाना फ्रिज में ही रख दिया गया था। मैंने ताईजान को आवाज दी। फ्रिज में से उन्होंने मुझे चिकन वगैरह निकाल कर दे दी। जब मैं खाना बना चुकी, एक बार फिर से चच्ची जान की खिदमत में हाजिर होने लगी। अब तो भूख से पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। मैंने कहा, ताईजान खुदा के लिए अब तो मुझे खाने के लिए कुछ दे दें। घर के सारे काम खत्म कर लिए हैं, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, रात का खाना भी नहीं खाया था। अब मेरी हालत बहुत खराब हो जा रही है। खुदा के लिए कुछ खाना दे दें ताकि मैं बाकी सारे काम आराम से कर सकूं। बात करते करते मेरी आंखों से आंसू आ गए। चच्ची जान मेरी तरफ बढ़ी और मेरे चेहरे को दबोचते हुए कहने लगी, अब पता चल रहा है कि तकलीफ क्या होती है। इससे कहीं ज्यादा तकलीफ तुम मुझे उस वक्त देती हो जब तुम मेरे बेटे के करीब होती हो और मेरा बेटा तुम्हारे हक में बोलता है। आज के लिए तुम्हारे लिए यही सजा है कि तुम सारा दिन भूखी और प्यासी रहो। अभी तो तुमने काम खत्म कहाँ किए? जाओ जाकर कपड़े इस्त्री करो, क्योंकि हादी वापस आ चुका है और उसे माही को लेकर जाना है। माही कुछ ही देर में आने वाली है। रात जो तुमने सब कुछ बिगाड़ा था ना, उसे ठीक भी तो करना है, वो भी तुम करोगी। जाओ और जाकर हादी के कपड़े इस्त्री करो। ताईजान ने मुझे सख्त लहजे में कहा तो मैं खामोशी से चली गई। मेज पर इस्त्री रखी थी और साथ ही साथ हादी भाई की शर्ट भी रखी हुई थी। मैं जल्दी से उनके कपड़े इस्त्री करने लगी। अभी मैं इस्त्री कर रही थी कि हादी भाई अपने कमरे से निकलकर मेरी तरफ बढ़े और कहने लगे, अरे हाँ, शुक्र है तुम भी थी, वरना मेरा क्या होता।
जल्दी जल्दी कपड़े इस्त्री करो, मुझे माही से मिलने जाना है, वो भी आने वाली होगी। मैं कमरे में जाकर फ्रेश हो जाता हूँ, तुम जल्दी से कपड़े इस्त्री कर लो। अगर तब तक मैं ना आया तो तुम ऐसा करना, कपड़े जाकर मेरे कमरे में रख देना, मैं बस अपने कमरे में ही हूँ। हादी भाई मुस्कुराते हुए कहते हुए अंदर चले गए और मैंने उनकी बात पर सर झुका दिया। तकरीबन 5 मिनट बाद मैं उनके तमाम कपड़े इस्त्री कर चुकी। वो अभी तक बाहर ना निकले थे। मैंने आवाज़ दी लेकिन कोई आवाज़ ना आई। फिर उनकी बात पर अमल करते हुए मैं उनके कमरे के दरवाजे की तरफ गई। दरवाज़ा बजाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ ही रखा तो दरवाज़ा खुलता चला गया। हादी भाई कमरे में सामने कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने उनके कपड़े उनके बेड पर रखे और पीछे जाने के लिए अभी मुड़ी ही थी कि मेरे पाँव के नीचे कुछ आया और एकदम से मेरा पाँव फिसला। मैं गिरने ही लगी थी तभी किसी ने आकर मुझे थाम लिया। मैंने खौफ से आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जो ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि हादी भाई मुझे मुकम्मल तौर पर थामे हुए थे। अगर वो वक्त पर ना पहुंचते तो शायद मैं ज़मीन बोस हो जाती। लेकिन अगले ही लम्हे ये देखकर मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा कि उन्होंने शर्ट नहीं पहन रखी थी। उनकी चौड़ी जिसामत वाज़िया हो रही थी। उन्हें यूं इस हुलिये में देखकर मुझे बहुत शर्म आने लगी, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे नहीं छोड़ा था। इससे पहले कि मैं सहारा लेते उठ खड़ी होती, दरवाजे पर खड़ी माही ने तालियां बजाना शुरू कर दी और एकदम से चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाने लगी। देखें देखें ममानी, देखें, ये है आपके बेटे के करतूत और ये है आपकी भतीजी के करतूत। आइए आइए नानी जान, देखिए, ये है आपकी पोती के करतूत। कल रात आप सब लोग बोल रहे थे कि ये लड़की बिल्कुल भी हादी पर डोरे नहीं डालती और ना ही हादी साहब इनसे मोहब्बत करते हैं। अब देखिए इन दोनों को। अरे ये पाकबाज बनने वाले हादी साहब अब बगैर शर्ट के उसके साथ अकेले कमरे में क्या कर रहे थे। अगर मैं ना आती तो हम सब की आंखों में धूल झोंकी जाती, जिस तरह आज तक झोंकी जाती रही। वो गुस्से से आगे बढ़ आई थी। घर के सभी अफराद एक एक करके यहाँ पर मौजूद हुए। पल ही पल में उसने मुझे क्या से क्या साबित कर दिया। मैं हैरत से कभी उसका मुंह तकती, कभी हादी भाई का मुंह देखती और कभी सारे घर वालों की नज़रों में अपने लिए नफरत देखती। आज से पहले जो नफरत मैं सहती आई थी, ये नफरत उससे कहीं मुख्तलिफ थी। सभी लोग अब मुझे बदकिरदार समझ रहे थे। हादी भाई जल्दी से आगे बढ़े और कहने लगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, वो बस गिरने लगी थी और मैं। हादी भाई की बात दरमियान में ही रह गई थी क्योंकि माही उसी वक्त आगे बढ़ी और उसने एक जोरदार थप्पड़ हादी भाई के चेहरे पर मार दिया और फिर अपने हाथ में पहनी हुई अंगूठी निकाल कर उसके हाथ पर रख दी और कहने लगी, मुझे ऐसे शख्स के साथ हरगिज नहीं रहना जो इस जैसी 2 टके की लड़की के साथ भी मोहब्बत की पींगे बढ़ाता हो और मेरे साथ भी रहने के वादे और कस्में खाता हो। और ये लड़की, नफरत है मुझे इस लड़की से और आज से इस घर से भी। जा रही हूं मैं। माही उसी वक्त गुस्से से कहती हुई चली गई। दादी जान आगे बढ़ी। उन्होंने मेरे बालों से मुझे पकड़ लिया और मेरे चेहरे पर एकदम से थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। हादी भाई शौक की हालत में खड़े थे। जो आज से पहले मेरे लिए लड़ते आए थे, आज उनका अपना ही सब कुछ मेरी वजह से छिन चुका था। लेकिन फिर भी कुछ लम्हों बाद जब वो वापस लौटे अपने हवास में, तो दादी तक आए और कहने लगे, दादी जान, इसका कोई कसूर नहीं, ये सब कुछ एक गलत फहमी है। वो बस मेरे कपड़े यहाँ रखने आई थी, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप लोग समझ रहे हैं। वो चीख चीख कर मेरे और अपने किरदार की सफाइयाँ दे रहे थे, लेकिन इस घर में मौजूद कोई भी इंसान ये बात समझने से कासिर था। सभी लोग मुझ पर लान तान करने के बाद कमरे से निकल गए। दादी जान भी मेरे हाथ से पकड़कर मुझे उस कमरे से बाहर ले गई। मैं नहीं जानती कि उसके बाद हादी भाई का क्या हुआ और क्या नहीं। मुझे अपने कमरे में लाकर बंद कर दिया गया। मैं रोते रोते दरवाज़ा बजाने लगी। ऊपर से मैं सारे दिन की भूखी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या गया। मैंने खाना मांगा, किसी ने मुझे खाना लाकर ना दिया और मुझे उसी कमरे में बंद कर दिया गया। बारी बारी ताई अम्मी और दादी जान आती,
मुझे मारती और वापस चली जाती। रात तक यही सब चलता रहा। दादा साईं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर थे, वरना ऐसे ना होता। रात को एक बार फिर से मेरे कमरे का दरवाजा खोल दिया गया। मैं कमरे से बाहर आई। मेरी हालत लुटी पिटी सी थी। मेरे मुंह से खून बह रहा था और मेरी आंखों में बेतहाशा दुख था। रोते रोते मैंने कई बार अल्लाह को पुकारा था। मैंने कई बार इंसाफ मांगा था, लेकिन फिलहाल यूं लग रहा था जैसे यहां पर इंसाफ नहीं उतारा जाना। यहाँ के लोगों की सफाकियां इस कदर बढ़ती जा रही थी कि अब मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी। ताई जान ने मेरे आगे दरवाजा खोला और मुझसे कहने लगी, जाओ और जाकर बर्तन धो। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे बेटे से दूर रहना, लेकिन तुम नहीं मानी। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। चच्ची जान ने मुझे बालों से पकड़कर किचन तक घसीट कर लाई और मुझे बर्तन धोने के लिए कह दिया। बर्तन धोने का कहने के बाद वो वहां से चली गई, लेकिन मैंने देखा बर्तनों में बचा कुचा खाना मौजूद था। मैं ये खाना उंगलियों से चाटने लगी। कुछ मेरा दिल भर गया था और मैं बर्तन धोने लगी। अभी मैं बर्तन धो ही रही थी कि पीछे से मुझे किसी के आने की आहट सुनाई दी। दादी जान और ताई अम्मी की इतनी मार सहने के बाद मुझ में कोई हिम्मत बाकी नहीं बची थी। मैं बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मेरे जिस्म का रुआं रुआं दर्द कर रहा था। मार खाने की अजियत एक तरफ और सबके सामने बदकिरदार होने की अजियत एक तरफ थी। दिल बार बार भर आता। चलने से भी कासिर थी। किसी के बार बार कदम उठाने की आहट ने मुझे बेचैन कर दिया और ये कदम मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैं आस्तगी से पीछे देखने लगी और जो ही पीछे हटी, मैंने देखा हादी भाई बिल्कुल मेरे मद्दे मुकाबिल आ खड़े हुए। उनकी हालत भी मुझसे कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। ये बात थी कि उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा था। मुझे मार बहुत पड़ी थी। वो तो घर के लाडले और बड़े बेटे थे, उन्हें कौन कुछ कह सकता था। मैं ही एक नसीबों की मारी थी जिसके माँ बाप ने पसंद की शादी की थी और दादा दादी की रजामंदी के बगैर शादी के बाद जब उनके यहाँ पहली औलाद हुई तो वो बेटी थी। और जिस रोज उनकी बेटी यानी मैं पैदा हुई, उसी रोज ही मेरे बाबा का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। मेरी माँ मुझे जन्म देते हुए उस दुनिया से रुखसत हो गई। तब से दादी ने मेरी कफालत तो करना शुरू कर दी थी। मुझे पाला पोसा था, बड़ा किया था। ताई जान और दादी जान ने हमेशा मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्हीं के हाथों में तो मैं खेली थी और पली बड़ी थी, लेकिन न जाने क्यों उनको मुझसे नफरत क्यों थी। ये तो दोनों मेरे लिए माँ का दर्जा रखती थी, तो क्या मैं उनके लिए बेटी का दर्जा नहीं रखती थी? यही सोच बार बार मेरे दिमाग में आती और मेरे आंसू बहने लगते। अब भी जब मैंने हादी भाई को देखा, वो लुटे पिटे से थे। उनके बाल बिखरे हुए थे। उन्होंने वही शर्ट पहन रखी थी जो मैंने इस्त्री करके उनके कमरे में रखी थी, और वही मेरे लिए वबाले जान बन गई थी। हादी भाई की आंखों में अब हमदर्दी की जगह गुस्से ने ले ली। वो बिना पलकें झपकाए गुस्से से मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे पहली बार उनसे डर लगा था। मैंने कहा, हादी भाई आप। उससे आगे अभी मैं बोल ना पाई थी कि उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ धीमी थी लेकिन बहुत मजबूत और गरजदार थी। उनके इस गुस्से को देखकर मैं बहुत सहम गई थी। इस घर के एक एक फर्द ने मुझ पर इतने मजालिम ढाए थे कि अब मैं ज़रा सी ऊंची आवाज़ से भी डर जाया करती। लेकिन ये तो सामने खड़े एक वजीह मर्द थे जिनके गुस्से से मैं वैसे ही डरती थी, और आज तो वो इस कदर गुस्से में थे जैसे मुझे अभी के अभी खा जाएंगे। वो गरज कर कहने लगे, तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब कुछ। तुम मुझे माही से छीनना चाहती थी ना? वो गुस्से से कहते हुए मेरी तरफ मजीद बढ़ने लगे। मैं पीछे होती हुई बिल्कुल शेल्फ के साथ लग चुकी थी। वो भी बिल्कुल मेरे करीब आ चुके थे। अचानक उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, और वो इस कदर गुस्से में हाथ पकड़ा था कि मेरा हाथ मरोड़ने लगे। दर्द से मेरी चीखें निकलने लगी। मैंने कहा, हादी भाई मुझे दर्द हो रहा है, खुदा के लिए मेरा हाथ छोड़े। लेकिन वो भी बहुत गुस्से में थे। मैं अपने दूसरे हाथ से अपने हाथ पर उनके हाथ की गिरफ्त को ढीला करना चाह रही थी, लेकिन किसी भी तौर उनके हाथ की गिरफ्त ढीली नहीं हो पा रही थी। वो गुस्से से मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, तुम्हारी वजह से माही ने मुझसे मंगनी तोड़ दी,
और अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। इसका बदला मैं तुमसे ही लूंगा। तुम जानती हो कि मैं हूं कौन। मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा था और तुम मेरी उस हमदर्दी का नाजायज फायदा उठा रही थी। वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए कहने लगे, लेकिन मेरी आंखों में अब खौफ के साथ साथ आंसू भी गिरने लगे थे। मैंने कहा, हादी भाई, मेरा कोई कसूर नहीं। आप तो सब कुछ जानते हैं। आप भी सबकी तरह मुझ पर ही शक कर रहे हैं। आपको तो सब कुछ बताना चाहिए था कि मैं बेकसूर हूं। लेकिन हादी भाई ने मजीद मेरी कोई बात सुनने से इनकार कर दिया और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा और कहा, खबरदार, खबरदार, खुद को बेकसूर कहा तो तुम्हारी वजह से मेरी मंगनी टूटी है और अब इस जुर्म की सजा भी तुम भुगतोगी, समझी तुम। ये कहते हुए वो मुझ पर गुस्सा करते वहां से चले गए। मेरी आंखें मजीद आंसुओं से भरने लगी। एक शख्स जिसके सहारे पर मैं इस घर में सुकून का सांस ले रही थी, आज वही शख्स मुझ पर ऐसा गुस्सा करके गया था जिस तरह बाकी सारे लोग गुस्सा कर गए थे। और आज तो उसी शख्स के हाथों मुझे थप्पड़ भी पड़ा था। पड़ता भी क्यों ना, मैं उसकी मोहब्बत से दूर करवाने वाली सबसे बड़ी वजह थी। मैं रोते रोते में एक बार फिर से आंख उठाकर अल्लाह की तरफ देखने लगी और दुआ मांगने लगी, ये अल्लाह, इन सब पर मेरी हकीकत वाज़ेहा कर दे। हकीकत वाज़ेहा नहीं करनी तो मुझे इंसाफ दे। मैं तुझसे इंसाफ की तलबगार हूं। मेरे दिल को तसल्ली हुई थी, जैसे मेरे रब ने मुझे कह दिया हो कि तू तसल्ली रख, तेरे लिए इससे बड़ा अजर मौजूद है। एक बार फिर से मैं बर्तन धोने में मशगूल हो गई। तकरीबन 2 घंटे मुझे बर्तन धोने में लगे क्योंकि मेरे हाथ बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। मैं काफ़ी देर रोती रही, फिर उसके बाद एक बार फिर से बर्तन उठाकर धोने लगती। जब बर्तन धो लिए तो एक बार फिर से अपने कमरे की तरफ चली गई। दर्द से जिस्म का रुआं रुआं दर्द कर रहा था और ज़बान पर सिर्फ अल्लाह का नाम था। अब इस दुनिया में अल्लाह के अलावा और कोई नहीं था। मैं कमरे में आई, सबसे पहले जी भर कर रोने लगी और फिर उसके बाद एक बार फिर से उठकर वज़ू किया, जायनुमाज बिछाई। खड़े होकर मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी। फिर बैठकर नमाज पढ़ने के बाद मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए। रोते रोते मेरी सिसकियां बन गई। या अल्लाह के अलावा कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल ही नहीं पा रहा था। बस सिर्फ इंसाफ की तलबगार थी। जायनुमाज पर न जाने मैं कितनी देर बैठी रही, मुझे कुछ नहीं मालूम। बस आंसू एक तवातुर से गिरते रहे और अपने रब को अपना हाले दिल सुनाती रही। फिर ज़रा सी गनूदगी हुई तो वहीं जायनुमाज पर ही सर टिका दिया और सो गई। आंख एक शोर के साथ खुली। बाहर से काफ़ी शोर आ रहा था। मैंने हैरत से इधर उधर देखा और फिर जो ही अपने साइड टेबल पर पड़ी घड़ी को देखा तो हैरत की इंतहा न रही। आज 7 बज चुके थे। मुझे उठने में देर हो चुकी थी और बाहर ताई जान और दादी जान गुस्से से चिल्ला रही थी। बार बार मेरा दरवाज़ा बजाया जा रहा था। मैं जल्दी से उठी, बिना मुंह हाथ धोए ही अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो ताई जान जैसे मुझ पर बरस ही पड़ी। कहने लगी, अरे ओ बीबी, कुछ होश है तुझे? इस घर में महारानी है क्या? इस घर की मालकन है कि तब तक तू सोती रहेगी, कोई उठाएगा नहीं? तूने नाश्ता बनाना था। देखो, आज मेरी बच्चियां बिना नाश्ते के यूनिवर्सिटी चली गई और हादी भी ऑफिस के लिए तैयार है। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ी तो हादी भाई की आवाज़ सुनाई दी, मामा मैं जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस से लेट हो रहा है। आज वो भी नाश्ता किए बगैर जा चुके थे। ताई जान ने मेरे बालों से पकड़ा और एक बार फिर से घसीटती हुई मुझे किचन तक लाई और मुझसे कहने लगी, अब मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाकर मैंने अभी टेबल पर लगाया ही था कि दादा जान की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। दादा जान डाइनिंग टेबल पर सबसे सरदार कुर्सी पर बैठे थे। वो वापस आ चुके थे। उनके साथ वाली कुर्सी पर दादी जान और उनके मुकाबिल ताई और ताया जान बैठे थे और साथ ही चचा और चच्ची भी बैठे थे। ताया जान और चचा हमेशा से ही ताई और चच्ची जान दोनों के गुण गाते थे और उन्हीं के इशारे पर चलते थे। आज भी उनका यही वतीरा था। लेकिन घर के सारे बड़े फैसले हमेशा दादा जान किया करते थे। लेकिन ये सच था कि वहीद मंजिल की ये तमाम फैसले और वहीद मंजिल की तमाम भाग दौड़ सिर्फ औरतों के हाथ में नहीं थी।
मगर अक्सर घर के अंदरूनी फैसले औरतों के हाथ में थे। यही वजह थी कि शायद इस घर में कभी सुकून नाम की कोई चीज नहीं थी। खैर, दादा जान मुझसे कहने लगे, ठहरो लड़की, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और आप सब लोग भी यहाँ मौजूद हो। मैं तुम सब लोगों की मौजूदगी में ये बात कहना चाह रहा हूँ। आज सुबह ही मुझसे हादी ने एक बात कही और मुझे उसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं, इसलिए उसकी बात पर अमल करते हुए मैंने एक फैसला किया है। और वो फैसला ये है कि आज शाम ही हया और हादी का निकाह हो जाएगा। नवीद और सईद, दोनों मेरी बात गौर से सुनो। आज शाम तक निकाह का बंदोबस्त करो। शाम को जैसे ही हादी आएगा हम इन दोनों का निकाह पढ़ा देंगे। और सुनो लड़की, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। आज तुम अपनी ताई के साथ मार्केट चली जाना, वहां से अपने लिए एक सूट ले लेना। बाकी जेवर घर पर ही मौजूद है जो तुम्हारी दादी ने हादी की दुल्हन के लिए संभाल रखा था। उसकी जगह पर तो हमेशा माही को ही देखा था, लेकिन जिस घर में तुझ जैसी नालायक औलाद मौजूद हो, वहां भला किसी बड़े के सपने कहाँ पूरे हो सकते हैं। जाओ, अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो। ये बात सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। हादी भाई मुझसे किस तरीके से बदला लेना चाह रहे थे। मैंने तो उन्हें हमेशा अपने भाई के दर्जे पर रखा था, और वो क्या करने जा रहे थे? मुझसे ही शादी रचाने जा रहे थे। यानी वो मुझसे शादी करके मुझसे तमाम बदले लेना चाहते थे, मुझे मजीद अजियत में मुब्तला कर देना चाहते थे। मैं जो इस खुशफहमी में थी कि किसी दिन जब इस घर से चली जाऊंगी सुकून पाऊंगी, लेकिन उस शख्स ने तो मेरे तमाम इरादों पर पानी फेर दिया। मेरी आंखों में आंसू निकल आए। मैं अगर बोलती भी तो कैसे बोलती? वैसे भी यहाँ पर सिर्फ दादा जान का हुक्म चलता था। मैं खामोश हो गई। घर के तमाम काम ख़त्म करने के बाद ताई जान मुझे अपने साथ मार्केट लिए आई। यहाँ से मेरे लिए रुखसती का जोड़ा लिया गया। घर वापस आई तो घर में निकाह की चहल पहल शुरू हो चुकी थी। ताया जान और चचा जान दोनों ने काजी और गवाहान का बंदोबस्त कर लिया था। हादी भी जल्दी वापस आ गए। यूं उनके आते साथ ही मुझे दुल्हन बना दिया गया और माही के नाम का बनाया गया तमाम जेवर आज मुझे पहना दिया गया। मेरे दिल पर बेहद बोझ था। हर लड़की का ख्वाब होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, घर के तमाम अफराद उसकी नई जिंदगी के लिए दुआगो हों, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। जबरदस्ती सब कुछ किया जा रहा था। मुझसे किसी ने कोई मर्जी ना पूछी थी। मेरी मर्जी के बगैर ही मेरा निकाह हादी भाई से कर दिया गया और रुखसती बाद पे रख दी गई। मैं उस रोज से मुसलसल कमरा लॉक करके सोने लगी। एक हफ्ते बाद दादा जान ने रुखसती का ऐलान किया और यूं मैं हादी की दुल्हन बनकर उसके कमरे में आ गई। जब सब लोग रुखसती से फारिग हो चुके और अपने अपने कमरों में चले गए तो हादी अपने कमरे में आए। मैं घूंघट निकाले बेड पर बैठी हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा था कि इस तरीके से मेरी शादी हो कि तमाम लोगों के दरमियान में बदकिरदार बनी हुई हो और फिर उसी बदकिरदारी के एवज मुझे मेरे भाई से ही रुखसत कर दिया जाए। बेशक वो मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन फिर भी आज तक मैंने उसे भाई समझा था। दरवाजा खुला, बंद हुआ। कदम कदम मेरे करीब आने लगे और आकर बिल्कुल मेरे करीब रुक गए। मेरे दिल की धड़कनें मजीद तेज हो गई। वो आकर बिल्कुल बेड पर मेरे सामने बैठे और मेरे चेहरे से घूंघट उठाकर एक सर्द मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली। मैं खामोशी से सर झुकाकर बैठी रही कि न जाने आगे क्या होने वाला था। मैं कुछ नहीं जानती थी। उन्होंने जेब में हाथ डाला और जब निकाला और मेरी तरफ अपना हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे हैरत हो रही थी। मुझे लगा शायद चच्ची जान को मेरा हादी भाई के साथ शादी करना अच्छा नहीं लगा था और अब वो सास का रूप दिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगले ही लम्हे रोती हुई आवाज मेरे कानों से टकराई। ये आवाज ताई जान की थी। हादी, जल्दी से बाहर आओ, जल्दी से बाहर आओ, अम्मी जान की तबीयत खराब हो गई है। इस आवाज पर मैं भी हैरान हुई थी। हादी जल्दी से भागते हुए बाहर गए और फिर वापस ना आए। बाहर भगदड़ मच चुकी थी।
दादी जान की तबीयत खराब थी, उन्हें हार्ट अटैक आया था। दूसरी तरफ जब ताया जान ने मौलवी साहब को पहुंचाने गए और वापस आ रहे थे तो उनका भी एक्सीडेंट हो गया था। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ समझ ही ना आई। मैं अपने कमरे में बैठी रह गई। ना तो कोई मेरी तरफ आया, ना ही मुझे किसी ने कुछ बताया। मैं जल्दी से अपने कपड़े तब्दील करके बाहर आ गई। चची जान और ताई जान दोनों ही उनके साथ हॉस्पिटल चली गई। मेरी तमाम कजन्स अपने अपने कमरों में थी। मैं खामोशी से अपने कमरे की तरफ आई और वजू करके जाए नमाज बिछा दिया। दादा जान, दादी जान और ताया जान के लिए बहुत सारी दुआएं करने के बाद मैं वहीं जाए नमाज पर ही सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं बेड पर थी और मेरे साथी हादी भी नींद की आगोश में थे। मुझे बहुत अजीब लगा था। हो ना हो उन्होंने मुझे उठाकर बेड पर सुलाया था। मैं जल्दी से उठ गई। मैंने टाइम देखा तो 8 बज चुके थे, लेकिन बाहर कोई शोर नहीं था। मैं हैरान हुई, लेकिन मुझे अभी भी सबके लिए फिक्र हो रही थी, क्योंकि सबके लिए नाश्ता मैंने ही बनाना था। मैं बेड से उतरने लगी तो किसी ने मेरे हाथ से पकड़ लिया। मैंने देखा हादी मुझे हाथ से पकड़कर टेक लगाए बैठे थे। मुझे हैरत हुई। मैंने हाथ खींचना चाहा, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, थक नहीं गई तुम काम करते करते? मैंने आराम देने के लिए ही तो तुमसे शादी की थी। मैं हैरत से उनका मुंह तकने लगी तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ तुम सही समझ रही हो। मैं माही से नहीं बल्कि तुमसे मोहब्बत करता था। मैं इसी कश्मकश में था कि मैं तुम्हारा इंतखाब करूं या माही का। और तभी उसी रात माही पर तुम्हारे हाथ से चाय गिर गई, लेकिन गलती तुम्हारी नहीं माही की अपनी थी, और उसने इतना वावेला मचाया। तुम खामोश रही। उस वक्त मुझे पता चला कि मेरे साथ जिंदगी गुजारने के लिए एक तुम हो जो परफेक्ट हो। मैं तुम्हें ही अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। मैं किसी भी तरीके से उस पर यह वाज़ेह कर देना चाहता था कि मैं उससे नफरत करता हूं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया था, और फिर तुम्हारे पाँव के नीचे आने वाली चीज को भी मैंने ही तुम्हारे पाँव के लिए नीचे लाया था, और फिर उसके बाद वो सीन भी मैंने ही बनाया था ताकि मैं तुमसे शादी कर सकूं। वरना ऐसे तो हमारे घर का कोई भी शख्स मेरी तुमसे शादी के लिए राजी नहीं हो सकता था। दूसरी बात, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें इंसाफ मिल चुका है। दादी जान को अटैक हुआ और जब वो होश में आई तो वो तुम्हारे हक में बोल रही थी। साथ साथ बाबा जान का जब एक्सीडेंट हुआ तो अम्मी जान भी रोते हुए कहने लगी कि शायद ये तुम्हारे सब्र का सिला है। तुम जानती हो, ये जो आज बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस जो कुछ भी है हमारे पास, ये सब कुछ तुम्हारी माँ के हैं। ये सब कुछ तुम्हारे नाम है। ये तो मुझे उस रोज पता चला था जिस रोज मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे थे, लेकिन मेरी अम्मी इन सब चीजों को तुमसे हथियाना चाहती थी, तुम्हें दबा कर रखना चाहती थी ताकि तुम अपना हक ना मांग सको। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो रही है। उसी रोज से मैंने तुम्हारी साइड लेना शुरू कर दी थी। देखो, मैं कोई भी राज नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हें तमाम हकीकत बता देना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम पर जुल्म करने वालों को सजा मिल चुकी है, और मैं ये सब कुछ पर वाज़ेह कर चुका हूं कि तुम्हारी ये प्रॉपर्टी, तुम्हारी तमाम जायदाद मैं खुद तुम्हारे हाथ में दूंगा। फिर तुम्हारा अपना फैसला होगा, तुम उसे जहां भी करो। तुम अब बालिग हो चुकी हो और ये सब कुछ तुम्हारा है। वो मुझसे इतना सच कह रहा था, लेकिन मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा था। मेरी आंखें आंसुओं से भरने लगी। मैंने उनकी तरफ नम आंखों से देखा तो वो मुस्कुराते हुए मेरी आंखों से आंसू साफ करते कहने लगे, अब ये आंसू आखिरी होने चाहिए। उसके बाद मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं दिखने चाहिए। जुल्म मुकम्मल हो चुका और कभी तुम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। मैंने सब पर वाज़ेह कर दिया है। रात ही रात उन लोगों के दिलों की जमी हुई मैल मैंने उतार फेंक दी है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम इस घर की रानी के साथ मेरे दिल की भी रानी हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए शरारत से कहा तो मुझे शर्मिंदगी ने आन घेरा। मगर मैंने आपको हमेशा भाई। मेरी बात अधूरी रही थी कि उन्होंने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, खबरदार, अब मैं तुम्हारे मुंह से भाई नहीं सुनना चाहता।
खुदा खुदा करके तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज छूटा है, अब दोबारा तुम्हारे मुंह पर यह लफ्ज नहीं आना चाहिए। मैं तुम्हारा मजाजी खुदा बन चुका हूं, तुम्हारा भाई नहीं रहा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा तो मैंने ऊपर की तरफ नजर डाली। बज़ाहिर छत थी, लेकिन मेरी नजर सबसे ऊपर आसमानों के पार उस खुदा की कुर्सी तक जा रही थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया था। मैं फ्रेश होकर बाहर निकली। ताई जान मेरी मुंतजिर थी। हमारे लिए नाश्ता बन चुका था और आज वाकई मुझे इस घर में एक बेटी का प्यार मिल रहा था, और ये सब कुछ हादी की बदौलत था। खुदा ने मेरी बात सुन ली थी और अब मुझे खुदा पर मजीद यकीन हो चुका था कि खुदा इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता और वो इंसान की कोई दुआ रद्द नहीं करता। बेशक वो सही वक्त के इंतजार में होता है। जब सही वक्त आता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें हमारा सब्र और हमारी मांग से ज्यादा मिल जाता है, और मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हो चुका था। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूं। आज सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।